Hello everyone, this is Kishore Patil and I welcome you all to my YouTube channel Maths for Science. Hello friends, today we are going to start the third chapter Triangles of Standard 9 Mathematics 2. Now for that chapter we are making three parts of that chapter. The first part is related with the properties related with the triangles. So in part 1 we are just going to see properties related with the triangles. Now first properties. Actually this one is very important part. Properties. First property, sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. Sum of measures of all angles, or you can say all three angles of a triangle, is 180 degree. That means if there is a triangle, that is in triangle ABC, you can write angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Okay, let us see the next property. The property of, or you can say the theorem of remote interior angles of a triangle. Now let us see first what do you mean by the remote interior angles. I am drawing a triangle. This is triangle ABC. Now for triangle ABC I am extending one side. BC को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ. ओके, आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, ए बी के एक्सटेंड कर दो, किसी भी एक सेगमेंट को एक्सटेंड कर दो. तो जो भी एंगल बन रहा है बाहर, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस वन इज एन एक्सटीरियर एंगल. तो विच इज एक्सटीरियर एंगल? हेयर एंगल ACD is an exterior angle. Okay, now what do you mean by interior angle? ट्रायंगल के अंदर के जो भी एंगल है, these are the interior angle. Angle A, angle B and angle C, these are the interior angle. Now see the word remote. रिमोट मतलब दूर के. अच्छा, रिमोट कंट्रोल हम लोग बोलते हैं, बराबर ना, रिमोट इंटीरियर एंगल्स. तो थ्योरम ऐसा है, मेजर ऑफ एंगल ACD, दैट मीन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू रिमोट सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल. तो इसके दूर के जो एंगल है ये दोनों, इन दोनों का सम एंगल A प्लस एंगल B. तो इसका मेजरमेंट, ये जो भी एक्सटीरियर है इसका मेजरमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू रिमोट इंटीरियर. ओके ओके, नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. तो ट्रायंगल्स के टाइप दो मेथड से होते हैं. मेथड 1 by sides and method B by angles. ट्रायंगल्स के टाइप by sides and by angles. तो फर्स्ट टाइप है by sides, इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. Now what do you mean by equilateral? Equi, that means equal, lateral, that means sides. So all three sides are equal, that means equilateral triangle. Second, isosceles triangle. Isosceles
triangle. आइसो दैट मीन टू, स्केलस दैट मीन मेजरमेंट्स, तो जिसके टू मेजरमेंट्स इक्वल है, दिस वन इज द आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो दो साइड इक्वल है, ओके, और एज वेल एज दो एंगल भी इक्वल है. एंड थर्ड वन इज द स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल, scalene triangle, that means all three sides are different. Now first type by angles, that is acute angled triangle. Acute angled triangle, जिसके all three angles are acute angle. Acute that means less than 90. Acute angle triangle, जिसके all three angles are less than 90, or you can say acute angles. The second one is the obtuse angled triangle. obtuse angle triangle, that means जिस ट्रायंगल का एक एंगल obtuse है या तो मोर देन 90 है, उसको बोलेंगे हम लोग obtuse angle triangle. एंड थर्ड वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री, उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल. नाउ लेट अस सी isosceles triangle theorem. Suppose this triangle ABC is an isosceles triangle. अच्छा, what do you mean by isosceles? Iso that mean two, scales that mean measurement. तो दो मेजरमेंट इसके कॉन्ग्रुएंट है. एज्यूम करते हैं कि दो साइड कॉन्ग्रुएंट है. तो if AB is congruent to AC, AB का लेंथ और AC का लेंथ इक्वल है, देन अगर ऐसा है तो उसका मीनिंग होगा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C. तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. इफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, इसका कॉन्वर्स क्या है, मतलब उल्टा. इफ एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, मतलब ये दो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये नहीं है कॉन्ग्रुएंट, ऐसा एज्यूम करते हैं. गिवन क्या है, ये जो दो एंगल्स है, एंगल B एंड एंगल C आर कॉन्ग्रुएंट. ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एंगल B एंड एंगल C. देन अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. B का अपोजिट साइड AC, C का अपोजिट साइड AB. ओके, समझ में आ रहा है. साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और एंगल कॉन्ग्रुएंट से तो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम. नाउ व्हाट इज इट? सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल है, इसका मतलब 90 डिग्री है. सो दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ 30, 60, 90 ट्रायंगल, दैट मीन सपोज वन एंगल इज 30 डिग्री एंड वन एंगल इज 60 डिग्री. तो देखो 30, 60, 90. सो 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम. सो इट स्टेट्स in 30, 60, 90 triangle, side opposite to 30 degree. Side opposite to 30 degree, that mean 30 के अपोजिट साइड, मतलब BC. ठीक, is half of the hypotenuse. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. दैट इज साइड अपोजिट टू 30, दैट मीन BC इज हाफ मतलब 1/2 इंटू हाइपोटेनस. विच वन इज द हाइपोटेनस? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. 90 के अपोजिट जो भी है, दिस वन इज द हाइपोटेनस. तो AC इज द हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस किसको बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल के सामने जो भी है ना, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं. ये हाइपोटेनस नहीं है,
ये हाइपोटेनस नहीं है, राइट एंगल के सामने जो भी है ना उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। एंड अच्छा थ्योरम खत्म नहीं हुआ, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 of the hypotenuse अच्छा that is side opposite to 60 degree AB is equal to √3/2 of the hypotenuse. Which one is the hypotenuse? Very good, it is AC. Okay, now let us see the next property, sixth property, that is 45-90 triangle theorem. Now suppose this is the triangle, angle B is 90 degree, 45-90. Suppose one angle is 45 degree and other one also 45 degree, and the last one, third one, is 90 degree. So this one is 45-90 triangle. Now in 45-90 triangle, side opposite to 45 degree is 1/√2 of the hypotenuse. Now what do you mean by 1/√2 of the hypotenuse? See here, साइड अपोजिट टू 45, तो इसके अपोजिट साइड ए बी, अच्छा इसके भी अपोजिट साइड बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज, अच्छा देखो ना आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या देखा था, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ए बी एंड बी सी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, एंड इज इक्वल टू 1/√2 of hypotenuse that mean AC. Okay, now let us see the next property, that is median of a triangle. Suppose ABC is a triangle and ये यहाँ पे एक पॉइंट है, I am taking suppose M be the point, which one is a midpoint of BC. Now what do you mean by midpoint? Midpoint that mean ये अगर टोटल 10 है तो इतना 5 है, इतना 5 है, तो ये M इसको एग्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इफ BC इज इक्वल टू 10 तो BM इज इक्वल टू 5 एंड CM इट इज ऑल्सो 5। ओके, तो द सेगमेंट विच इज जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, इसको जो भी ज्वाइन कर रहा है AM इज द मीडियन। अच्छा सपोज AC का मिड पॉइंट यहाँ पे, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन इज इक्वल टू N, AC अगर 6 है तो AN रहेगा 3 और NC रहेगा 3, तो इसको ज्वाइन करने वाला जो भी सेगमेंट है इसको बोलते हैं मीडियन। सिमिलरली AB का अगर मिड पॉइंट यहाँ पे आई एम टेकिंग सपोज R, यहाँ पे R है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसे तो मुझे R कहीं यहाँ पे मिलेगा, दिस वन इज द R इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल रहेगा, इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल रहेगा, एंड सिमिलरली AN इज कॉन्ग्रुएंट टू NC। इज दैट ओके? सो वी कैन से AM BN CR are the medians. ओके, एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, एक्चुअली इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, क्योंकि 3 सेगमेंट है, मोर देन 2 है, 2 लाइन्स अगर है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसको हम लोग G बोलते हैं। एंड G ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग G इज सेंट्रॉइड, व्हाट वी कॉल्ड G इज सेंट्रॉइड। ठीक है, एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला इज, और द सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी इज सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी
centroid property. Centroid of a triangle, centroid of a triangle divides each median, divides each median in the ratio of 2:1. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये सेंट्रॉइड है, इतना मीडियन है, तो ये जी इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा. मतलब अगर ए जी 2 है तो जी एम रहेगा 1, इसका ये डबल रहेगा. अगर जी एन 2 है, इतना 2 है, तो ये रहेगा 4. इफ दिस वन इज हाफ, तो इसका डबल मतलब 1. अच्छा, ये इफ दिस वन इज 3, तो इतना रहेगा 6. इसका ये पार्ट डबल रहेगा, इससे ये पार्ट डबल रहेगा, इससे ये पार्ट डबल रहेगा. मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूँ, मेजरमेंट ऐसे नहीं है, अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है. लेकिन इससे ये पार्ट डबल रहेगा. दैट इज वाई वी कैन से सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इच मीडियन in the ratio 2:1. Okay, now let us see property number 8, property of median drawn on the hypotenuse of a right angle triangle. See, this one is a right angle triangle. In the previous example, we have seen that we can draw 1, 2 and 3 medians of any triangle, but this property is specially related with the median drawn on hypotenuse. AC is the hypotenuse. तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है. सपोज आई एम टेकिंग एम बी द मिड पॉइंट. तो अगर मैं बी एम को ज्वाइन करूँ, बी एम, दिस इज द मेडियन. ओके, तो मेडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये प्रॉपर्टी है. If BM is median, then अगर ये मेडियन है तो AM is equal to BM is equal to CM. तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम रहेगा. ये कब एप्लीकेबल है? ओनली इन टर्म्स ऑफ right angle triangle and median is drawn on the हाइपोटेनस. हाइपोटेनस छोड़ के अगर इस पे ड्रॉन किया है ऐसा मीडियन तो नहीं चलेगा. ओनली मीडियन कहां पे ड्रॉन चाहिए? हाइपोटेनस पे. ओके, द नेक्स्ट वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. अच्छा, प्रॉपर्टी तो बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एक सेगमेंट है मेरे पास इतना. ओके, ए बी इज द सेगमेंट. अच्छा, मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट यहाँ पे एरो बनाते हैं. एरो बनेगा तो सेगमेंट थोड़ा ही बचेगा. दिस वन बिकम्स द रे और द लाइन. एक साइड एरो बनाया तो रे बनेगा, दोनों साइड एरो बनाए तो लाइन बनेगा. सेगमेंट को एरो नहीं रहते, एंड पॉइंट्स में यहाँ पे पॉइंट रहते हैं. ओके, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. इस सेगमेंट कंपास में मैं हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेता हूँ. अच्छा, कितना भी अंदाजे से लेने का. यहाँ पे रखता हूँ 1 आर्क ऑन द अपर साइड, 1 आर्क ऑन द लोअर साइड. यहाँ पे रखते हैं एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ. दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, एंड बाइसेक्टर दैट मीन ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल हो गए. दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आई एम टेकिंग एम. दिस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. मतलब अगर ए बी 10 है तो एम रहेगा 5, बी एम रहेगा 5. ए बी 10 है इतना, तो एम 5, बी एम 5. ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ व्हाट इज द थ्योरम? Theorem is any point
sorry, theorem is any point on the perpendicular bisector. Okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ every point on the perpendicular bisector is equidistance from the end points of the segment. अच्छा, ये क्या हुआ? एवरी पॉइंट आई एम टेकिंग, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, यहाँ पे सी बी द पॉइंट. तो दिस पॉइंट अगर मैं सी टू ए कनेक्ट करूं, ओके, एंड सी टू बी कनेक्ट करूं. अच्छा, ए बी क्या है? ए बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. सेगमेंट के एंड पॉइंट है ना. सी टू ए कनेक्ट करूं या तो सी टू बी कनेक्ट करूं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा. ए सी एंड बी सी इक्वल रहेगा. अच्छा, सिर्फ ऊपर क्या नहीं, नीचे भी कोई भी एक पॉइंट ले लो. आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, सपोज दिस वन इज द पी. तो अगर मैं ए टू पी कनेक्ट करूं, ए पी, एंड बी टू पी कनेक्ट करूं, पी बी, तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा. ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. एंड व्हाट इज वाइस वर्सा और कॉन्वर्स? थ्योरम ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इक्विडिस्टेंट है. ओके, और उल्टा क्या होगा? इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, देन पॉइंट मस्ट बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगी. अगर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. सपोज देयर इज एन एंगल, एक एंगल ऐसे मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं. सपोज दिस वन इज द बाइसेक्टर. ओके, एंगल ए बी सी एंड बी डी इज द बाइसेक्टर. इफ बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ये बी डी ए बी सी का बाइसेक्टर. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? ये टोटल एंगल है सपोज 60, तो ये रहेगा 30 और ये रहेगा 30, इतना 30 इतना 30. अच्छा, टोटल है एज्यूम करते 80, तो इतना रहेगा 40, इतना रहेगा 40, दैट इज द बाइसेक्टर. अच्छा, नाउ व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, कोई भी एक पॉइंट एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर पे, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द रेज ऑफ द एंगल. अच्छा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस डिस्टेंस, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस. सपोज पी बी द पॉइंट, पी एम एंड पी एन. सो व्हाट इज द थ्योरम? every point on bisector of an angle is equidistant from what? From the sides of द एंगल. अच्छा, ये देखो, अगर ये बी डी एंगल बाइसेक्टर है और पी कोई भी एक पॉइंट है, एवरी पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे सो मेनी पॉइंट्स ना, उसमें से कोई भी एक पॉइंट है, तो दिस पॉइंट मस्ट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स
ऑफ द एंगल, तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल रहेंगे। एंड व्हाट इज द कॉन्वर्स? अच्छा सिमिलर, ये एक ही पॉइंट नहीं, कोई भी दूसरा पॉइंट लेते हैं। आई एम टेकिंग वन पॉइंट हेयर, सपोज क्यू बी द पॉइंट, इसको मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर दूसरे साइड पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस पॉइंट इज सपोज एक्स, दिस वन इज सपोज वाई, तो ये क्यू एक्स एंड क्यू वाई ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। ओके, एंड उल्टा क्या होगा, अगर एक लाइन पे कोई एक पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, तो दैट मीन दिस लाइन मस्ट बी एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एनी पॉइंट मस्ट बी इक्विडिस्टेंट, और अगर इक्विडिस्टेंट है तो डेफिनेटली दिस वन इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, property number 11, properties of inequalities of sides and angles of a triangle. Now what is the property? Suppose assume करते हैं ABC is a triangle, ये segment है suppose 4, this segment is equal to suppose 6 and this one is suppose 7. Okay, तो which one is the smallest? AB is the smallest, तो इसके अपोजिट ये जो भी एंगल रहेगा ना, दिस एंगल मस्ट बी स्मॉलेस्ट। अगर ऐसा है ए बी इज लेस देन ए सी इज लेस देन बी सी, देखो ए बी इज लेस देन ए सी इज लेस देन बी सी, सबसे बिगर वन स्मॉलर वन। ओके, अच्छा तो इसका अपोजिट एंगल है सी, तो एंगल सी ये छोटा रहेगा। इसका अपोजिट एंगल है बी, एंगल बी, एंड दिस वन इज द स्मॉलर देन एंगल ए, ये सबसे बिगर है तो इसका अपोजिट एंगल भी सबसे बिगर रहेगा। दैट मीन वी कैन से एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी दो साइड का सम करो, सपोज आई एम टेकिंग ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी इन दोनों का सम किया तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी। दोनों साइड का सम थर्ड से ग्रेटर ही चाहिए। एज्यूम करते मैंने ए सी प्लस बी सी लिया, ए सी प्लस बी सी लिया, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी। ओके, किसी भी दो साइड का सम मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। See the last property, that is similar triangles. If triangle ABC, this one is similar to triangle PQR, देखो मैं पढ़ कैसे रहा हूं, if triangle ABC similar, ये सोया हुआ ऐसे, ये सोया हुआ ऐसे ना, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ऐसा है। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, देखो हम लोग टीवी के दुकान में जाते तो वहाँ पे ना एक छोटा टीवी रखते थे, एक बड़ा टीवी रहता है, लेकिन शो एकदम सेम दिखता है। क्रिकेट का मैच चल रहा है तो एकदम सेम दिखता है दोनों में, छोटा व्यू बड़ा व्यू खाली बराबर, उसको बोलते हैं सिमिलर। तो ये छोटा ट्रायंगल है, उसको एकदम एग्जैक्ट बड़ा करेंगे, जैसे हम लोग मोबाइल पे हम लोग ऐसा बढ़ाते हैं तो सब डायरेक्शन में सब कुछ एज इट इज सेम बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं सिमिलर। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन तो उसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। मतलब ये एंगल और ये एंगल, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 रहेगा, ये 70 है तो ये भी 70 रहेगा, ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा बराबर। तो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स एक्चुअली करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग angles are congruent and
उसका सेकंड मीनिंग होता है साइड्स आर इन proportion. what sides are in proportion. इसका मतलब पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर. देखो क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी. ओके, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तो अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding angles are congruent and corresponding sides are in proportion. Corresponding sides are in proportion. So these are the properties related with the chapter triangle. Remaining we will see in the next part. Thank you. If you like the video, then like it, share it and subscribe it. Don't forget to click on bell icon.